Hello, student. A very good morning and Assalamu alaikum to all my students of class 2. How are you all, my bacha? We all teachers are missing you a lot. I hope you all are very fit and fine and doing well with your health. Inshallah, we'll meet very soon. So, student, today we are going to see chapter number 30, that is our Earth recapitulation part number 2. Student, already in 2-3 days we have started giving you the practice worksheet, right? Student, that practice worksheet is your revision work. That means you have to learn from that, then you have to learn from your CW notebook also, and then you have to refer your textbook also. We can ask anything from anywhere for the exams. Okay, students? Before explaining the part number 2, chapter number 13, our Earth, I would like to appreciate some of the students who have answered my question. The first girl is Alia Batadar. Alia, very good beta. Every day you are answering my all the question. I'm so happy to see that, Alia, that you always answers my questions. Keep it up, Alia. Very good. I'm clapping for you. Very good, Alia. The next is Patel Ismail Mohsin. Very good, Ismail. I like you. Very good, beta. You are also answering me every day to all my questions. I really appreciate all that student. Very good, Ismail. Keep it up, beta. Very good. Now, again, this is the Ismail name. Ismail, very good, beta. Keep it up. I'm very happy that you are learning, you are watching my videos, you are understanding what I'm explaining you, and you are answering my all the questions. So student, this is very good for me. I'm very happy. Very good, student. Excellent. Now this is Hamza Imran Patel. Very good, Hamza. Hamza is also always giving me the answers of all my questions. I'm so happy to see this, that my students are watching the videos, they are liking my videos, and even they are answering all my questions. Hamza, this clap is for you. Very good. Very good, beta. Ansari Ammar. Yes, Ansari Ammar, we get the oxygen from the tree, beta. Very good. Keep it up, Ammar. Even you are also answering me every day. I'm so happy. Very good. I'm appreciating all my lovely students who all are giving me the answers in the comment box. Very good. Hitler Sufyan, yes, we get the oxygen from the tree. Very good, Sufyan. Keep it up, beta. I'm also clapping for you. I'm very, very, very happy. Thank you so much, student, that you are giving me the answers every day in the comment box. Keep it up. I love you all. Very good. Now I request all my students to please take out chapter number 13, Our Earth. So, student, as you all know that in the part number 1, we have learned about the plants and hills and mountains. Now today in this video we are going to learn about the valley. Student, what is the valley? What do you mean by the valley? Let's see. The place between the two mountains is known as valley. Place between the two mountains is known as valley. The lower land lying between the hills are called a valley. Can you see this picture? The two sides are the green, right? And the place between these two mountain, place between these two hills, ये दोनों हिल्स के बीच की जो जगह होती है, बीच वाली जो जगह होती है उसको वैली बोला जाता है, और वो बहुत लो लैंड होती है जहाँ आप इजीली जा सकते हो. रिवर एंड स्ट्रीम फ्लो थ्रू दिस वैली. दे आर ग्रीन एंड फर्टाइल एरिया. जो वैली है वो टोटल फर्टाइल एरिया है. सो स्टूडेंट, टुडे क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़, आज का मेरा ये क्वेश्चन है, वेयर वुड यू लाइक टू लिव?
आपको सबसे ज़्यादा कहाँ रहना पसंद है? इन द प्लेन्स यानी खुली जगह में, प्लेन जगह में, जिस अभी जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर, और ऑन द हिल्स, या तो आपको माउंटेन्स और हिल्स पर रहना पसंद है, और इन द डेजर्ट, या आप डेजर्ट में, रेगिस्तान में रहना पसंद करते हो। यहाँ 3 ऑप्शन दिए, PLAIN प्लेन्स यानी फ्लैट जगह, हिल्स यानी माउंटेन पर, डेजर्ट। आपको 3 में से कौन सी जगह पर रहना पसंद है, उस जगह का नाम लिख कर देना है, क्यों रहना है ऐसी जगह पर, उसका भी रीज़न आपको मुझे लिख कर देना है। सो ये मेरा क्वेश्चन आज के लिए ये है। ओके, गॉट इट? नाउ सी द नेक्स्ट। प्लेट्यूज, ये चैप्टर हमने आगे भी पढ़ा था बहुत अच्छे से, राइट? प्लेट्यूज किसको बोलते हैं? अ हाई लैंड दैट इज़ द फ्लैट एट द टॉप and look like a table is called a tableland or a plateaus। मतलब एक माउंटेन जैसी जगह होती है, बट हमने माउंटेन पर पीक देखा था, एक पॉइंट एरिया देखा था, पॉइंटेड वाला, राइट? बट प्लेट्यू का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, एकदम सीधा होता है। उसको देखने पर हमें ऐसा लगता है अरे ये तो टेबल जैसा है, इसलिए प्लेट्यू का दूसरा नाम क्या दिया गया है? टेबल लैंड। प्लेट्यू का दूसरा नाम क्या दिया गया है? टेबल लैंड। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इसकी हाइट ज़मीन से काफ़ी ऊपर है, ऊंचाई पर है, बट वो ऊपर से क्या है? माउंटेन की तरह पॉइंटेड नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, इसलिए इसका नाम दिया गया है टेबल लैंड। व्हाट इज़ द सेकेंड नेम ऑफ प्लेट्यू? टेबल लैंड। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट किसको बोलते हैं मेरे बच्चों? रेगिस्तान को, है ना? चलो, वन मोर क्वेश्चन। गुजरात में रेगिस्तान कहाँ आया? वाइट डेजर्ट है, मुझे उस डेजर्ट का नाम आपको लिखकर भेजना है। अ डेजर्ट इज़ द एरिया कवर्ड विद द सैंड, ठीक है, और वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है। तो मेरे 2 क्वेश्चन हैं आज के। कौन से 2 क्वेश्चन हैं? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कौन सी जगह पर रहना पसंद करते हो? प्लेट्यू पर रहना पसंद करते हो, हिल्स पर रहना पसंद करते हो, या डेजर्ट में, राइट? और दूसरा क्वेश्चन मेरा आज का आपके लिए ये है कि हमारे गुजरात में भी एक डेजर्ट है, वाइट डेजर्ट है, उस डेजर्ट का क्या नाम है? और वहाँ पर एवरी दिसंबर पर बहुत बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, फेयर लगता है, वहाँ पर मेला लगता है। तो आप मुझे वो डेजर्ट का नाम बोलेंगे, वो गुजरात में ही है, ठीक है? तो मैं वेट करूँगी कौन से बच्चे मुझे आंसर दे रहे हो। ओके। कैक्टर इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट। डेजर्ट में सबसे ज़्यादा प्लांट कौन से ग्रो होते हैं? कैक्टस प्लांट। कौन से प्लांट ग्रो होते हैं? कैक्टस प्लांट। Camel are found in the large number in the desert. They are also called a sheep of the desert. कैमल में एक एनिमल है, जो कैमल है वो डेज़र्ट में बहुत अच्छे से दौड़ सकता है, चल सकता है, इसलिए सब लोग डेज़र्ट के एनिमल को क्या बोलते हैं? हु इज़ द शिप ऑफ द डेज़र्ट, यानी शिप क्यों बोला जाता है? क्योंकि पानी में बोट कितनी आसानी से और स्मूथली दौड़ती है और चलती है, राइट? वैसे ही डेज़र्ट में जो कैमल हैं वो बहुत आसानी से और इजीली चल पाते हैं, वो जल्दी थकते नहीं हैं, और वो लॉन्ग टाइम तक उनको भूख और पानी की प्यास नहीं लगती है। पता है क्यों? क्योंकि कैमल एक स्पेशल एनिमल है जिसके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर 2 बैग होती है, एक फूड स्टोर की बैग होती है और एक वाटर स्टोरेज की बैग होती है। कैमल बहुत फटाफट अपना खाना खाकर एक बैग में अपनी बॉडी के अंदर वो बैग में डाल देता है और बहुत सारा एक साथ पानी पीता है, और वो सारा पानी उसके बॉडी के एक बैग में जमा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब स्कूल आते हो तो आप वाटर बैग लेकर आते हो, है ना, जिसमें पानी भरा होता है, और दूसरा टिफ़िन बॉक्स लेकर आते हो जिसमें खाना होता है। तो कैमल की बॉडी में भी ऐसा ही होता है, उसकी बॉडी के अंदर एक तरफ एक बैग में उसका खाना रहता है और दूसरी बैग में उसका पानी रहता है।
इसलिए जब भी कैमल रेगिस्तान में चलता है और वहाँ पर बहुत सारे दिन तक अगर वो पानी नहीं पिएगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने जो अपनी बॉडी के अंदर जो बैग में पानी जमा किया है, जब उसको वो प्यास लगती है तो वो अंदर से वो पानी निकाल कर पी लेता है, और उसको जब वो भूख लगती है तो वो अंदर से निकाल कर खाना खा लेता है। फिर वो सारा खाना उसके स्टमक में जाता है। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, आई बात समझ में? इसीलिए कैमल को शीप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है कि वो काफ़ी दिन तक खाने और पानी के बिना ज़िंदा रह सकता है, बट वो सारा खाना और पानी अपने कहाँ स्टोर करता है? अपने बॉडी के अंदर। Now we will see types of the water body. Student, what do you mean by water body? Water body means from where we get the waters. Water कहाँ कहाँ store है? Let's see. The earth is also called a blue planet. बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये आंसर दिया है कि the earth is called a blue planet. अर्थ को ब्लू प्लानिट क्यों बोला जाता है? मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था क्या, कि हमारा जो अर्थ है उस पर 70% जितना पानी है और 30% जितनी ज़मीन है, इसलिए हमारा जो अर्थ है वो ऊपर से देखने पर कौन से कलर का दिखता है? ब्लू कलर का। इसलिए हमारे अर्थ को कौन सा नाम दिया गया है? प्लानिट, ब्लू प्लानिट। It's appear blue from outer space. This blue color is due to the water covered its surface. ब्लू कलर इसलिए दिया गया है उसको क्योंकि वो चारों तरफ इसके क्या है? बॉर्डर पर पानी है, इसलिए हमारा अर्थ ऊपर से सैटेलाइट से ब्लू कलर का दिखता है। प्लानिट। There are various types of water body found on the earth. ज़मीन पर ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर पानी मौजूद है और वो सभी को अलग अलग नाम दिए गए हैं। लेट्स सी कौन कौन से नाम है। द फर्स्ट वन इज़ द लेक। फर्स्ट वन क्या है? लेक। द सेकेंड वन इज़ पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम, सी एंड ओशन। लेक का मतलब तालाब। पॉन्ड यानी एक छोटी सी जगह होती है जिसमें पानी भर के रखते हैं। रिवर मतलब नदी। स्ट्रीम यानी झरना, जहाँ छोटी छोटी जगहों से पानी बहकर निकलता है। सी यानी ओशन, है ना, समुंदर, दरिया। और ओशन यानी बहुत बड़ा समुंदर, सी, दरिया, है ना। सो हाउ मेनी water bodies are there? There are 6 types of water body. Which are they? Lake, pond, river, stream, sea and ocean. So there are total 6 types of water bodies. ये सारी जगह किससे भरी है? पानी से भरी है। Now see, pond and lake. pond और lake किसको बोलते हैं? Ponds are small water bodies and lakes are bigger than the pond. Pond किसको बोलते हैं? एक छोटी सी जगह जो हम खुद भी बना सकते हैं। एक खड्डा खोद दो थोड़ा सा और वहाँ पर पानी भर दो, वो क्या हो गया आपका? पॉन्ड। लेक यानी तालाब, जो वो पॉन्ड से थोड़ा बड़ा होता है। आपने आई थिंक सो तालाब देखा होगा, है ना। मैंने बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा। हमारे भरूच में भी 2 तालाब हैं, है ना। एक रतन तालाब है और एक शक्तिनाथ पर एक जो तालाब है, मातरिया तालाब, है ना। 2 तालाब है हमारे भरूच में भी। नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिवर। हमारे भरूच में कौन सी रिवर बहती है? विच रिवर फ्लोज इन द भरूच? नर्मदा रिवर, है ना। भरूच में कौन सी रिवर जाती है? नर्मदा रिवर, है ना। सबने देखी है ना नर्मदा रिवर, है ना। हमारे यहाँ पर ये फुरजा पर भी है ना नर्मदा रिवर। काफ़ी बड़ी रिवर है वो। ड्यूरिंग समर्स द स्नो ऑन द माउंटेन्स पीक मेल्ट। दिस स्नो टर्न्स इनटू वाटर विच फ्लो डाउन इन द फॉर्म ऑफ द रिवर। हिमालय के साइड पर, शिमला, मनाली, कश्मीर पर बहुत सारे माउंटेन्स है जो बर्फ़ के हैं। सारे पूरे माउंटेन्स बर्फ़ के बने हुए हैं
वहाँ कोई मिट्टी वाले बर्फ़ नहीं, माउंटेन्स नहीं है। समर्स यानी गर्मियों की सीज़न में वो बर्फ़ पिघलते हैं और जैसे आपको पता है बर्फ़ पिघल जाता है तो वो क्या बन जाता है वापस, पानी, क्योंकि बर्फ़ किस में से बनता है, पानी में से बनता है ना। तो वो माउंटेन्स का सारा बर्फ़ पिघलता है धीरे धीरे, और जैसे ही वो बर्फ़ पिघलता है वो पानी बन जाता है और फिर वो माउंटेन्स से होकर नीचे बहने लगता है। तो जैसे जैसे पानी बहने लगता है तो नीचे आते तक तो वो क्या बन जाती है, रिवर बन जाती है। आप देख सकते हो ये पिक्चर में, दो माउंटेन्स के बीच में से पानी जा रहा है यानी वो रिवर बन गया। वाटर इन रिवर फ्लो थ्रू प्लांट्स एंड जॉइन द सी। जो नदियाँ हैं वो क्या करती है, प्लेन्स यानी ज़मीन पर से होकर गुज़र कर वो समुंदर में यानी सी और ओशन में जाकर वो मिल जाती है। ओके स्टूडेंट, आई बात समझ में? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट. Now see what is the next. Now sea and ocean. Sea are larger water bodies जो seas होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं. Ocean are the largest water body. सी से सबसे बड़ा ओशन, दरिया से बड़ा समुंदर होता है. Got it? Sea and oceans have the salty water which is not fit for drinking. समुंदर और दरिया का जो पानी होता है बहुत ज़्यादा खारा होता है. खारा यानी सॉल्टी होता है, इसीलिए वो पीने के लायक नहीं होता है. हम उसको कोई दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बट पीने के लिए वो फिट नहीं है. हम उसके लिए पानी पी नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी यानी खारा पानी आता है. आप खाना बनाने के लिए जो सॉल्ट यूज़ करते हैं ना मम्मी घर में, वो किससे बनता है, सी और ओशन वाटर से. दरिया और समुंदर के पानी से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है ना, नमक मिलता है. उसके पानी को स्टोर किया जाता है. ओके, स्टोर करने के बाद जब वो वाटर ड्राई हो जाता है तो उसमें से हमें पूरा वाइट कलर की एक चीज़ मिलती है, वो सॉल्ट होती है. वो फैक्ट्री में जाकर फिर प्योरीफाई होकर वो बाहर निकलती है, इसलिए फिर हमें उसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. आई होप स्टूडेंट you understand this chapter very nicely. Inshallah your exams are also come very soon. हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए. आई एम रियली मिसिंग ऑल माई लवली स्टूडेंट ऑफ क्लास 2. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय. अल्लाह हाफिज़. लव यू.